Let's start. Aditya. Okay, we'll start. Hello, good evening, everyone. My name is Aditya Mangani from V Development. And first of all, we like all attendees, we like to thank you. Thank you for attending the seminar. And we hope all of you are safe at your home. We're doing this seminar because since the last few days, we've been getting a lot of inquiries, a lot of messages. People are really afraid of what is going to happen in real estate post the COVID is done. So we thought that MDCC and V Development should come together on a platform and explain to you and resolve all your queries. So we'll try to answer as many queries as we have. But if you still have any other queries, you can write to us on Facebook or on our email ID. That is info@vdevelopment.in. Let's not waste much of time. Let's just get into it quickly. So I'll just introduce you to Mr. Chhabria, Naresh Chhabria. He's the founder of SDY Corporation, which is a fintech company. Mr. Chhabria himself is in real estate since the last 20 years, more than 20 years. And he has a lot of knowledge about finance. And he's also associated with a lot of societies specifically for redevelopment. So Mr. Chhabria, I'm sure even you can give a lot of your inputs throughout the seminar to make it more interesting. Over to you. Hi, good evening, everyone. Am I audible? Yeah. Good evening. Hi, good evening. Yes, good evening to all. A warm welcome to the webinar and hope all of you and your families are staying safe, healthy, and are following all the guidelines of COVID-19 issued by the government so that the situation returns back to normalcy and the lockdown can be opened as soon as possible and we all can get back to our normal daily routines, both in our personal as well as in our work lives. Friends, from the plague of Athens of 430 BC to the Spanish flu of 1918, from the man-made crisis of the financial meltdown in 2008-9 to the present pandemic of COVID-19, we human beings have never ever faced such a catastrophic situation, and finding solutions to come out of the situation requires unconventional and drastic solutions. And finding them, believe me, is going to be very challenging and not easy. But remember, we Indians are very resilient. From the times of the Indus Valley civilization to Alexander's invasion of our great country, from the battle against the Mughal Empire to the freedom struggle from the Britishers, and even in the modern times, from the meltdown during the financial crisis of 2008-9 to demonetization, we Indians have not only bounced back, but have time and again on multiple occasions that not only we evolve, but we lead and take giant and bold steps in finding solutions to all our challenges. Over the last few weeks, we all have heard from various industry leaders and luminaries that what are the hardships and challenges all industries are facing, and specifically real estate. Today, we are not only going to talk about challenges, but through our discussions, we will also try to find solutions specifically for redevelopment of building in urban cities of India like Bombay, Pune, Delhi, Bangalore. Friends, after talking to industry stalwarts in real estate, and once the lockdown is lifted, there is consensus that the biggest two challenges we foresee with what real estate, specifically the redevelopment vertical, is, am I audible, right? Yeah. Will face is, first of all, finance to undertake new projects and liquidity to complete ongoing projects. And second, sales. How do we motivate and generate sales in urban cities of India? In these challenging times, and to discuss the present circumstances and to find solutions and the way forward, it's my pleasure and honor to welcome our esteemed speaker for the evening, who will be joining us in a short while, Mr. Praveen Darikalji. Is Mr. Praveen Darikalji online with us? Yes. Hi, sir. Welcome. So he's already online. We'll just welcome him first. Namaste, sir. Welcome. Namaste. A warm welcome to you on this webinar, Thank you. especially on self-redevelopment and the way forward. सर, आपने देखा होगा कि भाई रियल एस्टेट की सिचुएशन कोविड के पहले भी काफी खस्ता थी और कोविड के बाद ड्यू टू फाइनेंस एंड अदर इश्यूज और थोड़ा इश्यूज हो गए, तकलीफ बढ़ने वाली है।
तो सर हम आपका इनसाइट जानना चाहते हैं, आपका थॉट जानना चाहते हैं, और सर एमडीसीसी बैंक क्या क्या स्टेप्स ले रही है ये मूवमेंट को रियल एस्टेट में थोड़ा सुधार लाने के लिए और स्पेशली सेल्फ रीडेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। सर हम सब उत्सुक हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए। प्लीज सर आप एड्रेस कीजिए वेबिनार। सबसे पहला मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग अपना आत्मविश्वास बना रहे कि कोविड को हम फाइट करेंगे और अच्छी तरह से यह कोरोना को खत्म करते हुए अपना पूर्व जीवन हम सुस्थिति में बिताएंगे। सबसे पहला एक दूसरे को दिलासा देने का काम हमें करना है। एक अच्छा सेमिनार इसी के थ्रू आप ऑर्गेनाइज किया, मैं बधाई देता हूं, क्योंकि जैसा जैसा दिन बीतता है वैसा हम सब लोग चिंता करते हैं कि जिस व्यवसाय में हम है वह उसका क्या होने वाला है। जो चीज मुझसे कंसर्न है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक जो हाउसिंग सोसाइटी को सेल्फ डेवलप करने के लिए, मतलब खुद की सोसाइटी खुद डेवलप करे, उसके लिए फंडिंग करती है, उसके लिए कोई चिंता करने का कारण नहीं। जिस तरह पहले भी हम फाइनेंस करते थे वैसा ही फाइनेंस किया जाएगा और उसमें भी और कई बैंक लेके कंसोर्शियम करके इसका वॉल्यूम हम बढ़ा देंगे। सबसे चिंता की बात है कि हमें एक दूसरे को सहारा देने की आवश्यकता है। सरकार करके, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जो हमें सहारा देने का प्रयास कर रहे हैं, कोविड को फाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम सब लोग सहभागी होना चाहिए। आपके सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में अभी 2 दिन के बाद मैं खुद अभी बैंक में जाने वाला हूँ, नहीं तो ऐसे ही जूम पे मीटिंग लेके यह भी सब्जेक्ट हमारे एजेंडा पे लेके जो हाउसिंग सोसाइटी ने हमारे पास अप्लाई किया है, संभावना जिनकी जिनकी है, उसके बारे में अभी क्या पोजीशन है, हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, इसका विवरण देंगे। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट के साथ भी जो रियल इस्टेट है, जो डेवलपर्स है, ये सभी लोग आज चिंताग्रस्त है, चिंतित है। लेकिन समय ही हर चीज का जवाब देता है, कोई फिक्र करने का बात नहीं। अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक कॉन्फिडेंट लीडरशिप अपने देश की है और उनके माध्यम से देश स्तर पर अच्छी तरह का कोई न कोई इलाज इस सब चीजों के ऊपर होगा, ये मुझे विश्वास है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिला बैंक करके और हमारे अंडर जो अर्बन बैंक है और हमारी जो लीड बैंक राज्य सरकारी बैंक है, ऐसा सब मिलके रियल इस्टेट के लिए भी हम अच्छी तरह से पैसा खड़ा करेंगे। ओके सर, हमें बहुत सारे सोसाइटी लोग फेसबुक और जूम पे लिख रहे हैं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, सिंस आप लीडर भी हैं, तो सर जो सितंबर 2019 का जीआर पास हुआ था, सर बहुत लोग लिख रहे हैं कि भाई आप स्टेट गवर्नमेंट को प्लीज अपने ऑफिसेज यूज कीजिए, भाई जितना जल्दी उसको और फास्ट फॉरवर्ड मूव कर पाए, बिकॉज जो अभी समय चल रहा है उससे ये जितना जितना जीआर जो आपने पास किया था वो टाइम पे जितना जितना फास्ट इम्प्लीमेंट होगा, सर ये वक्त पे बहुत सारी सोसाइटी जो सेल्फ डेवलपमेंट के गई है उनको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर को भी सर उससे काफी फ्लिप और मोमेंटम आएगा पॉजिटिवली। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा है, आपका थोड़ा अपना प्रायोरिटी बदल गया था, इसलिए हम लोग थोड़ा कोविड के ऊपर ही कंसंट्रेशन था। लेकिन अभी हर सब्जेक्ट हम लोग हाथ में ले रहे, उसमें कल परसों ही मैं ये जीआर के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सीएम को मैं लिखूंगा और इसके ऊपर भी एक्शन इनिशिएट होगा, मूवमेंट होगा, ऐसा मैं देखेगा। 8 दिन में अब ये मटेरियलाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस वेबिनार। आपने अपना कीमती समय निकाल के, आप मुझे हम सबको मालूम है कि भाई आप बहुत सारा
अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और बहुत सारी लोगों के लिए आप मदद कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके मदद कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस वेबिनार, और आपका कीमती वक्त निकाल के आपने हमें ज्वाइन किया सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी हमारा काइंड ऑफ यू। ऑफिसर है, हमारा आपके साथ ऑफिसर दलवी है, जो इन डिटेल कुछ लगेगा तो वो वार्तालाप में रहेगा। ठीक है Yes, सर, sir. थैंक यू, Sure. थैंक यू वेरी मच, वेरी मैं काइंड विदा ऑफ यू लेता सर, हूँ। वेरी Thank you, काइंड ऑफ sir. यू, थैंक यू वेरी मच। So we continue with our webinar. Thank you very much. We continue with our webinar. So as I told you that as I told you, we continue our webinar right now. That so we are joined by Mr. Uday Dalvi ji, Deputy Manager of MDCC Bank, and who is actually the flag bearer of a lot of societies who have gone for self-development or right to go under self-development with MDCC Bank, and Mr. Pranay Goel, founder of We Development, the only organization in Mumbai who have not only pioneered the self-development concept, but are the only ones who have been physically executing self-development projects till date and on the verge of completing the initial projects which they started in 2019. A big thank you to you, Dalvi sir, for inviting me here to be a moderator, and Pranay ji, to you also for having me here. So we'll start our questionnaire, sir. So the first question, Pranay, is to you, is what do you see the impact of the lockdown on the redevelopment industry in Mumbai? Impact, as we start the seminar, I think इसके पहले जो दरेकर जी ने भी काफी अच्छे insights दिए in terms of self-development. But to start with the webinar context, which is the impact of redevelopment industry in Bombay, I think post-COVID तो अभी हुआ है, pre-COVID की अगर बात की जाए तो अभी भी redevelopment industry काफी तरह से difficult situations में थी. काफी कुछ कारण थे. एक की कॉस्ट काफी बढ़े हुए थे, दूसरी की फाइनेंस अवेलेबिलिटी फॉर बिल्डर्स वर वेरी डिफिकल्ट. Okay. These were the reasons post pre-COVID, but I think post-COVID the situation has not changed. In fact, और worse हो चुकी है. जहाँ पे कॉस्ट आज गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किए, कुछ चेंजेस नहीं किए हैं फिलहाल, तो कॉस्ट अभी भी हाई है. फाइनेंस अवेलेबिलिटी और डिफिकल्ट होनी है, लिक्विडिटी और डिफिकल्ट होनी है. उसी के साथ शायद जो सेल्स की बात की जाए तो सेल्स भी आने वाले टाइम में काफी डिफिकल्ट हो सकता है. ये सब कंसिडर किए, ये सब कंसिडर करके रीडेवलपमेंट स्पेसिफिकली, आई थिंक बिल्डर्स लेड रीडेवलपमेंट जो मॉडल है आने वाले टाइम में और डिफिकल्ट होने वाला है, सिचुएशंस और गंभीर होने वाली है. ओके. दलवी सर, सेम सवाल आपके लिए भी है कि भाई आपको क्या लगता है इम्पैक्ट होने वाला है लॉकडाउन के बाद रीडेवलपमेंट इंडस्ट्री पे, खास करके मुंबई के अंदर? Okay. First of all, thanks for inviting on this webinar specifically for self-development. दरेकर साहब का हमारे पहले मैं धन्यवाद देना इसीलिए चाहूंगा कि बहुत मुशक्कत करने के बाद आज वो अवेलेबल हुए और उन्होंने भी अपना टाइम इसमें दिया है. जो सेल्फ रीडेवलपमेंट में आज एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज ए चेयरमैन और लीड करते हैं, और उन्होंने इस सेल्फ रीडेवलपमेंट मूवमेंट पुश करने के लिए काफी योगदान दिया है. काफी सपोर्ट हमारे जैसे अफसरों को उन्होंने दिया है और सोसाइटी के लिए एक अच्छा खासा एक मौका सेल्फ के जरिए इन्होंने उपलब्ध कराया. अभी अभी उन्होंने आश्वस्त हमें कराया है कि जीआर के अनुसार हम आगे चलकर ये 8-10 दिन में कोशिश करेंगे. सो डेफिनेटली इसके बारे में हमारा प्रयास कई महीनों से चल रहा है जीआर आने के बाद, और मुझे उम्मीद है दरेकर साहब ने अगर हाथ में लिया तो ये काम डेफिनेटली होना ही है, इतना मुझे विश्वास है. अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि डेफिनेटली पोस्ट कोविड इम्पैक्ट तो सभी इंडस्ट्री में होना है. सो हमारी रियल इस्टेट तो कोविड के पहले ही लड़खड़ा रही थी, कोविड के बाद अब और थोड़े से सिचुएशन हालात उनके शायद बुरे हो गए हैं. सो आगे चलकर डेवलपर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत मुझे दिखाई देती है कि इस रियल इस्टेट सेक्टर में उनके लिए और बड़ी मुसीबत अब खड़ी हो गई है, क्योंकि एनबीएफसी के जरिए फंडिंग वगैरह कराना है, कई सारे इश्यूज है. तो पहले लोगों के दिमाग में एक डर था कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड उनकी सिचुएशन इससे शायद और बुरी हो सकती है और सेल्फ रीडेवलपमेंट
मेरा पर्सनल व्यू है कि सेल्फ डेवलपमेंट इज अ गुड सॉल्यूशन फॉर इट, आगे चलने के लिए, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। तो सर हम लोग एक टॉपिक को अभी आगे ले जाते हैं। जैसा आपने कहा कि भाई अभी सेल्फ डेवलपमेंट आपके हिसाब से पोस्ट कोविड सोल्यूशन है, तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट व्हाट द चैलेंजेस आर, इनफैक्ट लेट अस टॉक अबाउट हम लोग क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एंड स्पेशली रीडेवलपमेंट के ऊपर। तो सर मुझे आपसे एक पूछना था कि भाई प्रणय, you are aware that you are one of the leading pioneers of the self-redevelopment industry. Could you also briefly explain the concept of self-redevelopment for our viewers? Self-redevelopment, basically I'll just explain it in a brief format. अगर सेल्फ रिडेवलपमेंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आई थिंक दो पार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो क्या बेनिफिट्स होते हैं सेल्फ रिडेवलपमेंट के, एंड द अदर थिंग व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रोसेस और एग्जीक्यूशन ऑफ सेल्फ रिडेवलपमेंट in comparison to a redevelopment scenario. So if we talk about benefits बहुत ही सिंपली अगर इसको पुट अप किया जाए तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट का बेनिफिट है, जहाँ बिल्डर के केस में वो बिल्डर लेके आता था, यहाँ पे सोसाइटी के केस में क्योंकि बिल्डर नहीं है, वो एंटायर बेनिफिट विल गो टू द सोसाइटी। दिस इज वन। सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू कारपेट एरिया, जहाँ बिल्डर कुछ कारपेट एरिया ऑफर करता था सेल्फ में, वो कारपेट एरिया डेफिनेटली बढ़ सकता है। यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल सोसाइटी का होता है सेल्फ रीडेवलपमेंट में। रीडेवलपमेंट में ये चीज नहीं होती। आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं रीडेवलपमेंट में बिल्डर को, थर्ड पर्सन को। सेल्फ रीडेवलपमेंट में सोसाइटी की खुद की पावर होती है, कोई किसी को पावर दी नहीं सकती। इससे बोलने का तात्पर्य है कि एंटायर जो कंट्रोल होता है सेल्फ डेवलपमेंट में सोसाइटी का खुद का होता है। तो जहाँ पे कंक्लूड करूँ तो सेल्फ में प्रॉफिट भी ज्यादा है, प्लस आपका सेफ्टी सिक्योरिटी भी ज्यादा है। ये बात रही बेनिफिट्स की। दूसरा पार्ट है सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरह से मैनेज किया जाता है। प्रोसेस किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसमें प्रोसेस में अगर बात करें तो उसको भी एक सिंपल वे में पुट अप करने के लिए एक फाइनेंस है और एक एग्जीक्यूशन है। ओके। फाइनेंस बिल्डर के केस में कहाँ से आता था? बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट में वो बिल्डर खुद इन्वेस्ट करते थे या एनबीएफसीज फंड करती थी। आने वाले पिछले कुछ टाइम में भी काफी डिफिकल्ट हो गई सिचुएशंस। लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात की जाए तो थैंक्स टू मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक, जिन्होंने पॉलिसी फ्रेम की है सेल्फ रीडेवलपमेंट की, जिसकी वजह से फंडिंग फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट सोसाइटीज हैज बिकम मच इजी। ओह वाओ। आई एम श्योर सर कुछ हाइलाइट्स देंगे और रिक्वेस्ट करूंगा सर को कुछ हाइलाइट देने के लिए सेल्फ रीडेवलपमेंट की पॉलिसी पे। बट उसके पहले फाइनेंस इस तरह से रिजॉल्व हो चुका है। बात रही एग्जीक्यूशन की, द एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट सोसाइटी को खुद करना होगा। ओके। हमारा सोसाइटी खुद एक्सपर्ट नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है। सोसाइटी हायर कर सकती है प्रोफेशनल्स को, वेरियस प्रोफेशनल्स भी बहुत डिफिकल्ट थे सोसाइटीज को हायर करके मैनेज करना इतने सारे प्रोफेशनल्स को, बिकॉज एज एवरीबॉडी नोज कि ये एक दो कंसल्टेंट का काम नहीं है, काफी टीम लगती है। जिसकी वजह से वी डेवलपमेंट फॉर्म हुआ, वन विंडो सॉल्यूशन डेवलपमेंट मैनेजर रोल्स के लिए। और इसी तरह से सोसाइटी को डेवलपमेंट मैनेजर के साथ टाई अप करके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकती है एंड टेक इट, एंड देन दे कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो बेसिकली जस्ट दिस इज व्हाट सेल्फ डेवलपमेंट मींस। दलवी सर, आप अभी लीडिंग सेल्फ डेवलपमेंट पॉलिसी के फंड करते हैं। आपका एक ही बैंक है जो पूरे बॉम्बे में, एमडीसीसी बैंक, जो सेल्फ डेवलपमेंट पॉलिसी को फंड करता है। तो सर आप मुझे बताएंगे थोड़ा ये पॉलिसी के बारे में, ये पॉलिसी हाउ इज इट, कैसा आपने इसको, इसके फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। डेफिनेटली सेल्फ डेवलपमेंट पॉलिसी बैंक ने सिर्फ फ्रेम नहीं करी है, उसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते गए हैं एज पर सिचुएशन के अनुसार या फिर सोसाइटीज के रिक्वायरमेंट के अनुसार या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो चाहिए होती है उसके अनुसार। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स नॉट अ स्टैग्नेंट डॉक्यूमेंट, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके। एज ऑफ टुडे टिल डेट, आज हम जब वेबिनार ले रहे हैं तो कुछ पॉलिसी के मैं हाइलाइट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 95% बैंक फंडिंग करेगी। सोसाइटी का अपना स्टेक होगा 5% का। ओके। इसमें सोसाइटी 1 FSI IOD के लिए अपना पैसा स्पेंड करेगी। ओके। इसके मैक्सिमम लिमिट एज ऑफ टुडे जो एक्सपोजर नॉर्म्स होते हैं रिजर्व बैंक नाबार्ड के अनुसार,
अब इस साल की बैलेंस शीट फाइनल होनी है, बट बेस्ड ऑन द 2019 की बैलेंस शीट, तो उसके ऊपर जो एक्सपोजर लिमिट पर प्रोजेक्ट, यानी हम एक प्रोजेक्ट को कितना लोन दे सकते हैं, सो एज ऑफ टुडे वो लिमिट 115 से लेके 117 करोड़ या 95% का कम, यानी 120-25 करोड़ के प्रोजेक्ट में बैंक 95% के हिसाब से 115 से 117 करोड़ फंड कर सकती है। ओह वाओ, वेरी गुड। के लिए अब मॉर्गेज क्या होता है? सो नॉर्मली सभी के दिमाग में डर है कि हमारे खुद के फ्लैट मॉर्गेज है क्या? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन सब जगह होता है। तो आपके वेबिनार के जरिए मैं फिर एक बार सभी लोगों को ये कहूंगा कि आपके एग्जिस्टिंग फ्लैट यहाँ पर मॉर्गेज नहीं है। लोन के लिए सिक्योरिटी क्या होगी? तो आपकी सोसाइटी का प्लॉट, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी बोरोवर है। सो बीइंग अ सोसाइटी एज अ बोरोवर, सोसाइटी की प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी, जो सोसाइटी की लैंड है वो मॉर्गेज होगी, और जो सेलेबल कंपोनेंट है वो मॉर्गेज होगा। सो इन शॉर्ट यहाँ पर अपने खुद के फ्लैट यहाँ पर मॉर्गेज नहीं है। ओके। कंसेंट कितनी लगती है? तो हमारे पहले पॉलिसी थी कि 100% कंसेंट, मतलब हमने उसमें थोड़ा सा सुधार कराया है, और 75% कंसेंट के ऊपर केस टू केस बेसिस पर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार दिए है, ये प्रपोजल सैंक्शन कराया। सिर्फ ड्रॉवल के पहले इनको 100% कंसेंट आना है, तो एक उनको ब्रीदिंग पीरियड मिल गया आगे चलने के लिए। बाद में आता है कि रीपेइंग पीरियड। यहाँ पर रीपेइंग पीरियड किस तरीके से होगा, उसका ड्यूरेशन क्या है? हम लोगों ने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया है। अगर 50 करोड़ तक कोई सोसाइटी लोन लेती है तो उनका रीपेइंग पीरियड होता है 2 + 5 7 ईयर्स। व्हाट इज 2 इज अ मोरेटोरियम पीरियड। ओके। अगर 50 करोड़ से ज्यादा लोन अगर उनको लगता है हमारी अपर लिमिट तक, तो वहां पर 50 करोड़ के अगर ऊपर लोन उनको लगता है तो उनकी रीपेमेंट पीरियड जो है वो 3 + 7, यानी 3 साल मोरेटोरियम एंड 7 ईयर्स रीपेमेंट। सो मैक्सिमम 10 ईयर्स। अब ये जो टेन्योर है वो अपने प्रोजेक्ट के साइज के अनुसार प्रोपोर्शनेटली कम होगा। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंगली मोरेटोरियम पीरियड, ये बहुत एक अच्छा टूल यहाँ पर आपको दिया है कि ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड जो आपका फेज मैनर में आप जो पैसा यूटिलाइज करेंगे उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होना है वो आपको इमीडिएटली पे करने की जरूरत ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड नहीं है। तो 2 साल तक चार्ज हुआ इंटरेस्ट आपको पे करना कोई मैंडेटरी नहीं है। ये एजम्पशन है कि आपका आगे 6-8 महीने में सेल शुरू होगा और पैसे आने शुरू हो गए तो आपकी ग्रेजुअली रीपेमेंट शुरू होगी। सो एक इसका बहुत बड़ा मोरेटोरियम पीरियड है, इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक अपने आप में इस पॉलिसी में है। ओके। इसका प्रोसेसिंग फी है 1% ऑन सैंक्शन लोन अमाउंट। ओके। 0.5% अगर आपके पास 1% नहीं है तो आपको 0.5% पे करना है, एंड रिमेनिंग 0.5% प्रोसेसिंग फी वो आपको लोन के जरिए आप उठा सकते हो। ओके। जैसे मैंने कहा कि आपकी सोसाइटी के लैंड एंड सेलेबल कंपोनेंट, जो प्रपोज बिल्डिंग में सेलेबल कंपोनेंट होगा स्पेसिफिकली, वो जो मॉर्गेज होगा, तो वहां पर जो मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो मॉर्गेज डीड हमें उसे स्टैम्प ड्यूटी अप्लाई करनी होगी। वो स्टैम्प ड्यूटी क्या होगी? तो स्टैम्प ड्यूटी होगी 0.5% ऑन सैंक्शन लोन अमाउंट, और उसका अपर लिमिट एज पर स्टैम्प एक्ट, उसका अपर लिमिट है 10 लाख। तो 10 लाख से ज्यादा वो नहीं हो सकती है। ओके। एंड 30,000 इज द रजिस्ट्रेशन फी। सो ओवर एंड अबव हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होती है? तो एक्स्ट्रा कॉस्ट 1% प्रोसेसिंग फी ऑन सैंक्शन लोन अमाउंट, 0.5% स्टैम्प ड्यूटी ऑन मॉर्गेज डीड, एंड 30,000 रजिस्ट्रेशन फी। इसके अलावा कोई ज्यादा बड़े एक्सपेंसेस का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई ज्यादा बड़े एक्सपेंसेस इसके अलावा नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 12.5% है जो टर्म लोन होता है, और वो प्रोजेक्ट लोन इसे कहते हैं। सो प्रोजेक्ट लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली इट वेरीज फ्रॉम 12% to 18% डिपेंड अपॉन द कौन से इंडस्ट्री में हम इसे फंड कर रहे हैं। सो एज ऑफ टुडे 12.5% इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके। सोसाइटी को बैंक के पास अप्रोच होने के लिए 2 रास्ते हैं। ओके। सबसे पहला रास्ता है प्री सैंक्शन। सोसाइटी को आगे चलकर कुछ डर है कि बैंक अगर आगे चल के लोन सैंक्शन करेगी नहीं करेगी, क्योंकि बैंक की प्री कंडीशन क्या है कि आपको फाइनल अप्रूवल के लिए 1 FSI IOD आपको ले आना है। ओके।
अब इसके लिए 20, 25, 50 लाख जो कुछ पैसा खर्च करके 1FS IOD लेकर टेक्निकल इशू बाद में हुआ तो सोसाइटी को प्रॉब्लम हो सकती है, बैंक अगर डिनाई करती है तो। इसीलिए हमने यहाँ पर प्री सैंक्शन का एक ऑप्शन रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी, कैश फ्लो और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारे चेकलिस्ट के अनुसार, वो प्री सैंक्शन के लिए अर्जी कर सकते हैं, जिसके साथ आपको 50,000 प्लस GST, करंटली 18% है 9, वो आप 59,000 का चेक देकर आप उसको प्री अप्रूव करा सकते हैं। और प्री अप्रूव कराने के बाद कंफर्टेबली आप आपके 1FS IOD के लिए आगे प्रपोजल लेकर फाइनल अप्रूवल के लिए 1FS IOD के बाद आप प्रपोजल यहाँ पर बैंक के पास सबमिट कर सकते हैं। ओके। सिमिलरली यहाँ पर कोई प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है, कि हमने देखा है कि लास्ट 1-2 प्रोजेक्ट में सोसाइटी के लोन प्री क्लोज हो गए, क्योंकि इंटायर सेल पोर्शन उन्होंने 2-3 साल में ही सेल करके ही इंटायर लायबिलिटी नील करके हमारे लोन रिपे कर दिए। सप्तर्षि को अपनी एक पुरानी सोसाइटी है। सो यहाँ पर कोई प्री क्लोजर चार्जेस आप लोगों को एज ऑफ टुडे नहीं है। अच्छा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंटली, एवरी ड्रॉवल के ऊपर जो सोसाइटी अपने PMC के जरिए हर काम जैसे पूरा होता है, लोन विड्रॉ करती है, तो उसमें बैंक एज अ चेकर वो मॉनिटर करती है। ओके। वो हमारे आर्किटेक्ट साइट पर जाके वो वेरीफाई करते हैं। ओके। फिर लोन का पेमेंट डिसबर्स होता है। लोन डिसबर्स होने के बाद आपके सोसाइटी के करंट अकाउंट में आता है, और सोसाइटी के करंट अकाउंट से वो रिस्पेक्टिव सप्लायर होगा, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, कंसल्टेंट होंगे, उनके डायरेक्ट अकाउंट में NEFT RTGS डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाना है। तो यहाँ पर कोई भी कैश विड्रॉवल लोन अकाउंट से हम लोगों ने विड्रॉवल की सुविधा कोई यहाँ पर रखी नहीं है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मेकर चेकर की प्रोविजन, यानी सोसाइटी के मेंबर सोसाइटी अपने PMC के जरिए ये काम उनसे करा लेगी। उनके बेस्ट कंसल्टेंट होंगे जो सोसाइटी को लगता है उन्हें अपॉइंट करे, उनके जरिए काम करेगी। और चेकर का काम, क्योंकि बैंक भी पैसा दे रही है, बैंक की भी तो रिस्क है, तो बैंक ने अपनी तरफ से जो प्रोजेक्ट के लिए जो एम्पैनल PMC है उनके लिए बैंक को प्रोजेक्ट बैंक की तरफ से मॉनिटर करेगी। सो पॉलिसी ने हमने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो डर सोसाइटी के दिमाग में, जो डर मेंबर्स के दिमाग में, हम लोगों ने उसे कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर सेल्फ डेवलपमेंट लोन पॉलिसी ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक। वाओ। तो सर जहां तक मैं समझा हूं कि भाई आपने ये प्रोसेस को, जो रिस्क रीडेवलपमेंट विद अ बिल्डर होता था, वो आपने जितना फंडिंग का जो रिस्क है वो आपने ये पॉलिसी के थ्रू पूरा मिटिगेट कर दिया है। अमेजिंग सर, अमेजिंग सर। सर अभी प्रणय जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई why do you think self redevelopment is the only solution to this challenge? Why do you say so? Don't we have any other options? If we start talking about options, आज सोसाइटी है, सोसाइटी को पहले तो डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट के लिए what are the options available? So there are two options. One is redevelopment through a builder. Another option is society self redevelopment by taking finance from bank and taking it further by themselves. So when we talk about these two scenarios, when you have already known the impact of the industry कि यहाँ पे industry में क्या impact होगा, then redevelopment will become much more difficult for a builder to take it further. Then definitely self-redevelopment could be the only solution. And coming forward, see, we believed in self-redevelopment since a few years back also, where we started these projects, जहाँ पे environment already self-development में काफी positive था. आने वाले टाइम में अनफॉर्चुनेटली जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हुए हैं, नंबर्स और बढ़ सकते हैं, इसमें सेल्फ रिडेवलपमेंट कुड बी द ओनली सॉल्यूशन इवन स्टिल व्हाट आई थिंक। ओके। फाइनेंस की जो इश्यूज थे वो वैसे ही रहने वाले हैं, कॉस्ट के इश्यूज सेम रहने वाले हैं। जो बेनिफिट्स के इश्यूज हैं, सेल्स के इश्यूज, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई मिस्ड इज द ऑब्जेक्टिव फॉर सोसाइटीज, प्रोजेक्ट कंप्लीशन देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप बिल्डर के केस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्रायोरिटी, जहां स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सेल्फ डेवलपमेंट में, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द प्रायोरिटी, project completion becomes a priority, and hence this becomes much more successful in taking this project forward. Okay. So that is why I believe 100% self development could be the only way forward. Okay. Dalvi sir, sorry, I'll just there are a lot of societies who are sending a lot of questions. Just one request to all those societies, we'll answer your questions as many as we can after these questions are over. Okay, just a humble request. Okay, thank you Aditya.
दलवी सर, आपको मालूम है पोस्ट कोविड के पहले भी बैंक्स को बहुत इश्यूज था लिक्विडिटी और फाइनेंस का, और सर हाउ डू यू थिंक फाइनेंस कैन बी जनरेटेड पोस्ट कोविड सिनेरियो? बेसिकली एक मैं आपको यहाँ पर एश्योरेंस दिलाऊंगा कि बैंक को कोविड के पहले भी कोई फाइनेंस का इश्यू नहीं था और पोस्ट कोविड भी नहीं होगा। इसकी वजह ये, इसका रीजन ये है कि बैंक गवर्नमेंट से कुछ फंड्स नहीं लेती है, ना ही नाबार्ड से कुछ रीफाइनेंस लेती है। बैंक की अपनी स्ट्रेंथ है अपनी मेंबर सोसाइटीज। ओके, आज मोर देन 9,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बैंक की मेंबर्स है जिनके फंड्स बैंक के पास पार्क हुए हैं। ओके, मोर देन 4,000 क्रेडिट सोसाइटीज जो बैंक की मेंबर, उनके फंड्स बैंक के पास पार्क है। 17 to 18 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दरेकर साहब ने जिक्र किया था, हमारे सब मेंबर्स बैंक जिनका क्लियरिंग हमारे थ्रू रोटेट होता है, हमारे सब मेंबर्स बैंक है। ऐसी 17 अर्बन बैंक है जो हमारे मेंबर्स है, उनके 50 to 60% डिपॉजिट्स उनके हैं। सो डिपॉजिट्स, ये कलेक्टिव डिपॉजिट्स, ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये पैसा हम उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी मेंबर सोसाइटीज है लोन के जरिए देते हैं। सो यहाँ पर फंड जनरेशन हमारे लिए कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है और सभी सोसाइटीज अब आगे चलकर अपने जो फंड्स है बड़े पैमाने पर बैंक की तरफ पार्क कर रहे हैं। सो फंड्स इज नॉट एन इशू टू जनरेट फंड्स। ओके, दलवी सर एक और सवाल है कि भाई ठीक है आप फाइनेंस तो अश्योर कर ही लेते हैं सोसाइटीज को, बट सर एक बहुत बड़ी तकलीफ और मेजर क्वेश्चन मार्क सोसाइटी मेंबर्स में होता है कि भाई सर फाइनली लोन तो इनको ही रीपे करना है और अभी सेल्स बहुत चैलेंजिंग है, तो व्हाट इज द बैंक का पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग पोस्ट कोविड? जब सेल्स चैलेंजिंग है तो बैंक इसको किस तरह से सोचती है और इसका रिस्क कैसा मिटिगेट करती है? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जितने भी सोसाइटीज की मेरी आज तक मीटिंग हुई है, सो प्री कोविड मैंने सभी को यही कहा है कि सेल्फ में अगर है सो वी आर वेरी मच सेफ। यहाँ पर सेल का फियर, पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 8 से 10 साल का, तो सेल का फियर यहाँ पर डेफिनेटली नहीं। क्यों, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। बट वन इम्पॉर्टेंट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं इस वेबिनार के जरिए हमारे सोसाइटीज के ऑफिस बेरर्स या मेंबर्स अगर ये देखते होगी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो या ऑफिस बेरर्स हो, एक चीज उनको हमेशा ध्यान में रखनी है, लोन रिपेमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नॉर्मल केस में बोरोवर होती है, सेम यहीं पर सोसाइटी बोरोवर है, इंडिविजुअल बोरोवर कोई नहीं है। सोसाइटी बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस बैंक एंड ओनर ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज करती है, तो सोसाइटी यहाँ पर बोरोवर है। तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोन रिपे करे। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरे कंधे पर सोसाइटी नहीं डाल सकती। लेकिन इसके लिए डरने की बात नहीं है या इसके लिए कोई चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। जैसे कोविड के पहले मैंने लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मेरा कोई डेवलपर से कोई कंपटीशन है नहीं, सेल डेवलपर के रेट से हमें करना नहीं है। ये थोड़ा हर्डल मुझे एक नजर आया था कुछ साल पहले कि लोगों की बहुत ग्रीड बढ़ गई है, वो फिजिबिलिटी में डेवलपर के रेट से सेल करके इतना मुनाफा कमाएंगे ऐसे कैलकुलेशंस करते थे। आज इस वेबिनार के जरिए मैं लोगों को कहूंगा कि सिचुएशन, हालात बहुत चेंज हो गए हैं, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट कुछ तो हमें भुगतना है। सो इसीलिए बी प्रैक्टिकल, एक्चुअल बेसिस के ऊपर इसकी वर्किंग कीजिए, हमारी फिजिबिलिटी समझिए, हमारी प्लॉट की साइज समझिए और वो हिसाब से हमारे रिवर्क कीजिए। ये रिवर्क करने के बाद अगर हम ग्रिड नहीं रखते हैं कि हम ये रेट से सेल करेंगे, वो रेट से सेल करेंगे, देखो डेवलपर के आज फ्लैट्स नहीं जा रहे हो, पहले भी सिचुएशन वो हुई थी, आज सिचुएशन यही है और अब और भी बुरी हो गई है कि यहाँ पर रेट पर इम्पैक्ट होना डेफिनेटली स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पर बायर कम होंगे, तो सप्लाई ज्यादा होगा, मैक्सिमम रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सेल्फ के थ्रू आगे चलने लगे तो। बट यहाँ सभी लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमारी ग्रीड या प्रॉफिटेबिलिटी को अब आप
लोअर साइड पे, जैसे प्रणय जी ने बहुत अच्छा शुरुआत में कहा था कि कंजर्वेटिव साइड के ऊपर वर्किंग कीजिए। प्रॉफिट ये हमारा कोई सेल्फ रीडेवलपमेंट का एम नहीं है और नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक इवन सेलिंग प्राइस तक भी वर्कआउट कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने आज के फिजिबिलिटी में वर्किंग किया है, जो कुछ हमने एक्स्ट्रा फ्री एरिया विद बेस्ट एमिनिटीज हमने हमारी फिजिबिलिटी वर्कआउट की है, ब्रेक इवन सेलिंग प्राइस में क्या होगा कि हमारे ब्रेक इवन सेलिंग प्राइस में हम फ्लैट सेल करेंगे लेकिन हमें सरप्लस कुछ नहीं मिलेगा, बट हम लोग हमारे घर जा सकते हैं जो हमने डिसाइडेड किया था एक्स्ट्रा फ्री एरिया विद बेस्ट एमिनिटीज और 50-60 साल के लिए इसका उम्र हो और टाइमली कंप्लीशन। सो सेल यहाँ पर मुझे कोई फियर नहीं है। मैं सभी लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग अपना फिजिबिलिटी को देखें, सेल के बारे में जितना ज्यादा इंटरनली सेल होता है उतना बोरो हमें कम करना पड़ेगा। अभी मैंने रिसेंटली वर्किंग भी कई सोसाइटीज को दिए थे कि जो बैंक के एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 24 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सेल्फ के लिए आए हैं, जिसमें से कई सोसाइटीज ने आईओडी के लिए अब फाइनल अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है। एवरेज 48% मेंबर्स लोगों ने अपने ही प्रोजेक्ट में सेलेबल कंपोनेंट एट ए डिस्काउंटेड रेट परचेज किया है। डिस्काउंटेड और उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड सर्कल में अब वो उन्हें डिस्काउंट रेट मेंबर्स जितना नहीं होगा, मेंबर से थोड़ा ज्यादा चार्ज करेगी, बट मार्केट से डेफिनेटली कम होगा। और उनका भी भरोसा बढ़ गया क्योंकि डेवलपर्स के बजाय अगर हमारे ही रिश्तेदार या अपना खुद का खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो टाइमली कंप्लीट होना है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई बैंक इनके साथ में है, मुंबई बैंक की फंडिंग इनके साथ में है, बाहर के लिक्विडिटी का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसकी वजह से यहाँ पर सेल ये कोई मुझे फियर नहीं लगता है। तो मेरे एक्चुअल, these are not hypothetical figures, ये तो एक्चुअल फिगर्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 48% मेंबर्स लोगों ने इटसेल्फ अपने प्रोजेक्ट में बाय करने का जो पैसा इकट्ठा किया है, इसके इम्पैक्ट ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम बाइंग है तो कहीं जगह 30-35% मेंबर्स ने बाय किया है, कहीं जगह 60-65% मेंबर्स ने बाय किया है। घाटकोपर स्थित एक सोसाइटी ने तो 80% कंपोनेंट ही बाय कर लिया है। ओह वाओ। उन्हें हार्डली 20-25% लोन की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इनिशियली रेंट की। सो जितनी बाइंग हमारी इंटरनली ज्यादा होती है उतनी फंड रिक्वायरमेंट्स कम होती है, उतनी हमारे इंटरेस्ट चार्ज होने के इंटरेस्ट की कॉस्ट हमारी सेव होती है। तो यहाँ पर लोअर साइड में मैंने देखा कि ऐसे सोसाइटी जिनके यहाँ पर मैक्सिमम इंटरनल बोरिंग हुई है, वहाँ पर उनको 55-60% के ऊपर लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ कम बाइंग हुए यहाँ पर 30-35% से ज्यादा, यानी ये प्रपोर्शन जो है ना, लो बाइंग है तो प्रपोर्शन थोड़ा लोन का ज्यादा लगना है और हाई बाइंग है तो लोन का प्रपोर्शन कम लगना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, हर सोसाइटी ये ध्यान में रखे। तो मेरे लिए यहाँ पर सेल ये कोई ज्यादा फियर नहीं, इसको हम सोसाइटी इसको किस तरीके से रिवर्क करती है अपनी फिजिबिलिटी, इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सो ग्रिड मत रखिए, इसके ऊपर रिवर्क कीजिए, ज्यादा बड़े प्रॉफिट की उम्मीद मत रखिए, टाइमली कंप्लीट होना और हमारे घर में आना, ये हमारा मोटो रखिए। कंफर्टेबली हम लोग कम से कम लायबिलिटीज में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आगे जा सकते हैं। सर मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि भाई जहाँ पे 48% लोग खुद ही एट कॉस्ट, आज हर बॉम्बे में या शहरों में हर घर वालों का एक सपना होता है, अगर आज उनको एक घर है तो दूसरा घर भी खरीदना, क्योंकि फैमिली बढ़ रही है, फैमिली न्यूक्लियर हो रही है। तो सर हर फैमिली में एक इच्छा है कि भाई काश अगर रेट बाहर मार्केट में 30,000 चल रहा है तो काश मैं 20,000 में खरीद सकता, अगर खार बैंड्रा में आज 50,000 चल रहा है तो काश मैं 35-40,000 में खरीद सकता। तो सर आपके जो आप बोल रहे हैं सर, ये तो चीज उनसे मुमकिन हो गई है, बिकॉज अगर सोसाइटी खुद रीडेवलप कर रही है तो वो लोग तो कॉस्ट पे खरीद पा रहे हैं, तो ये तो सोशल इंजीनियरिंग हो गया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, उसको एक सोशल कॉज भी मैं कहता हूँ। बैंक की भले ही लोन पॉलिसी हो, लेकिन मैं इसे एक सोशल कॉज ही कहता हूँ। और अगर आपको ये सेलेबल कंपोनेंट परचेज करना है, अगर उनके फैमिली इनकम अच्छी है, उनके बच्चे या उनकी अनमैरिड डॉटर्स अगर अच्छे खासे कहाँ पर जॉब करते हो, तो हम ये एक्स्ट्रा एरिया परचेज करने के लिए उनका हाउसिंग लोन भी दे सकते हैं।
सर एक और चीज, एक और थॉट आया सर इसके, ये जो आप बता रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग ही नहीं सर, ये तो मिडिल क्लास के लिए वेल्थ जनरेशन हो गया। आज लोग बोलते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट मत कीजिए, रियल शेयर मार्केट में डालिए या दूसरे प्रोडक्ट्स में डालिए, बट अगर आज सोसाइटी लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट अगर घर खरीदने मिलता है बॉम्बे जैसे शहर में, तो सर आज नहीं 5 साल बाद 8 साल बाद तो उनकी वेल्थ तो ऐसे ही डबल हो जाएगी सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अमेजिंग सर, अमेजिंग। प्रणय, जस्ट टू टेक दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड विथ यू, how do you see, because the scenario of sales is very challenging, how do you see, because Dalvi sir ने तो इसको बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है through the bank's perspective, but I want to know through a development manager perspective or through a PMC perspective, how do you take this forward? हेलो, कुछ पॉइंट्स ऐड करना है। जैसे पहले आपने इम्पैक्ट के बारे में बताया, तो इम्पैक्ट अगर मैं बोलूँ तो इम्पैक्ट इज अगेन in regards to, there are two impacts basically, finance और एक sales. Yeah. तो इसलिए आज जो हम लोगों ने वेबिनार भी ये सेटअप किया, these are the main two topics, finance और sales. तो sales पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, तो इस पे डेफिनेटली कल करेंगे। लेकिन इस पे एक शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो just one thing again, the objective matters in development. Objective of a society जहाँ पे profit maximization नहीं, again it comes to project completion, and this is where self-redevelopment becomes the only successful model in the coming times. यहाँ सोसाइटीज जहाँ पे 25,000 का रेट है वहाँ पे 20,000 में भी सेल कर सकते हैं, उनको मार्केट का कोई वास्ता नहीं है। सिमिलरली जहाँ पे 50,000 का रेट है वहाँ पे 45,000, 40,000 is also affordable for a society, but not. So that is why sales become much easier in self-redevelopment. That way even repayment becomes much easier for a society. Okay. Dalvi sir, जो भी आपने पॉलिसी समझाया और जो भी बैंक का पर्सपेक्टिव है, और प्रणय यू आल्सो कम इन दिस, जिस तरह लग रहा है आप दोनों का व्यू एक ही है कि भाई सेल्फ रीडेवलपमेंट इज अ मच सेफर एंड अ रिस्क मिटिगेटेड ऑप्शन देन अ बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट इन बॉम्बे इन पोस्ट कोविड सिनेरियो। Absolutely. So if you, sorry, if I take it, risk mitigation, if you talk about self redevelopment being a risk mitigated or a, जिस तरह लग रहा है आप दोनों का व्यू एक ही है कि भाई सेल्फ रीडेवलपमेंट, तो सेल्फ रीडेवलपमेंट काफी रिस्क मिटिगेटेड ऑप्शन है, इनफैक्ट सेफर ऑप्शन है फॉर द सोसाइटीज। देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। ऑल्सो फर्स्ट थिंग, जब फीजिबिलिटी हम लोग वर्कआउट करते हैं फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट टू मेक इट मच मोर सेफर, क्या कर सकते हैं इसके लिए मैं कुछ पॉइंटर्स बताऊं कि to make self-redevelopment much more safer, and what we have already spoken, societies should rework their feasibility reports. हमारे भी जो societies हैं, हम लोग सब societies का rework करना होगा feasibility reports. तो reports को और conservative बनाना होगा in terms of cost, sales price को कुछ reducing sales price रख के हम लोग को workout करना होगा. In terms of sales, जैसे आपने पहले भी sales के बारे में पूछा था, I think this is the time where we need to increase our marketing spends. सेल होगा, मार्केटिंग में सेल रुकेगा नहीं, बट थोड़ी मेहनत और थोड़े एफर्ट ज्यादा लगेंगे। मार्केटिंग स्पेंड्स आर मोर, व्हिच सोसाइटी शुड टेक केयर की मार्केटिंग स्पेंड्स में बढ़ाया जाए। इस तरह से फीजिबिलिटीज काफी रिवर्क करनी होगी, जिसके बेसिस पे सोसाइटी सेफर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ। और अगर आगे और रिस्क मिटिगेट करनी है सोसाइटीज को, वन थिंग दैट इवन वी हैव टू चेंज आवर प्रोफेशन एज प्रोफेशनल्स, इवन वी नीड टू चेंज सम सिस्टम्स इंटरनली। हमें भी कुछ चीजें चेंज करनी होंगी, जैसे कि इंस्टेड ऑफ चार्जिंग अ फी वी कुड वर्क ऑन बार्टर सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टर्स को बार्टर सिस्टम पे लेके आ सकते हैं। बार्टर सिस्टम लेके आने का बेनिफिट सोसाइटीज को ये होता है कि एक तो लोन की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। आई एम सॉरी दलवी सर, आपके सामने बोल रहे हैं बट आप भी इस चीज पे आई एम श्योर अग्री करेंगे, बिकॉज आई नो यू पर्सनली। सो लोन की रिक्वायरमेंट कम होगी सोसाइटीज को, और लोन की रिक्वायरमेंट कम होगी, ये तो एक डायरेक्ट बेनिफिट है। साथ ही साथ सेल्स का भी रिस्क कम होगा सोसाइटीज को। जो एक फियर है, जो साइकोलॉजिकल फियर है, इट्स नथिंग मोर देन अ साइकोलॉजिकल फियर, वो भी काफी कम होगा, बिकॉज आपका सेल्स ऑलरेडी हो चुका है तो प्रोफेशनल। So there is a change which needs to happen even from the society side, from the industry as well as from our side. तो दलवी सर, जो जैसे प्रणय जी ने अभी बोला कि भाई things have to be reworked little bit, तो सर मुझे बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना था, बिकॉज एमडीसीसी बैंक ने बहुत सारे प्री सैंक्शन करके रखे हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट स्टेज पे आगे बढ़ रहे हैं। तो सर जो कोविड के पहले जितने भी प्री सैंक्शन हुए थे या प्रोजेक्ट्स हुए थे,
ऑटोमेटिकली सर पोस्ट कोविड वो सैंक्शंस वैलिड है या उसको वापस रिवर्क, और आप लोग उसको कैसे सिस्टमैटिकली प्रॉपर ऑर्डर में लाएंगे? पहले प्रणय जी के एक अच्छा पॉइंट डेफिनेटली रेज किया कि बैंक लोन, जैसे मैंने कहा, ये एक सोशल कॉज भी है बैंक का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बैंक का ये काम है कि एक कॉपी मूवमेंट पुश करना। ओके, सोशल कॉज के लिए बीइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन के जरिए इंटरेस्ट अर्न करके उनका बिजनेस चलता है, दैट इज ट्रू। बट स्पेसिफिकली अगर हम सेल्फ के लिए बोलते हैं तो ये एक अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया जो पर्सनली मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर अब सोसाइटी को भी कुछ एक्शन इनिशिएट करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सपर्ट्स, कि लोगों को कैसा है कि मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, फ्लैट सेल होनी चाहिए, फटाफट घर में आना चाहिए। बट यहाँ पर हम लोगों का एक माइंडसेट सोसाइटीज को एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा खर्चा करने की तैयारी। जैसे अच्छा एक मुद्दा इन्होंने उठाया कि थोड़ा मार्केटिंग में स्पेंड कीजिए, एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कीजिए। और ये मेरा बिलीफ है कि ये कोई बहुत बड़े एक्सपेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि जो कंपोनेंट मेंबर ने परचेज किया वो बचा हुआ एरिया हमें एट द अर्लिएस्ट सेल करके इंटरेस्ट सेव करने के लिए। ओके, क्वार्टर का इनका एक अपना एक अलग कैलकुलेशंस है। डेफिनेटली बीइंग एन एक्सपर्ट्स उनका अधिकार है, तो वो अकॉर्डिंगली उसको वर्क करके आगे जा सकते हैं। अब मैं आता हूँ अपने इस पॉइंट्स पर। आपने सॉरी थोड़ा रिपीट करेंगे ये? नहीं सर, मैंने ये सवाल पूछा था कि भाई जब जो प्री सैंक्शन हो चुके थे प्रोजेक्ट कोविड के पहले, तो पोस्ट कोविड वो सैंक्शंस लागू है और प्री सैंक्शंस लागू है या नहीं लागू है? बेसिकली प्री सैंक्शंस के लिए हम लोगों ने ऐसा कुछ टाइम फ्रेम रखा नहीं है कि प्री सैंक्शंस देने के बाद इतने महीने में उन्होंने अप्लाई करना चाहिए। कि हमने एज्यूम किया है कि प्री सैंक्शंस के बाद हम सोसाइटीज जब आगे बढ़ती है आईओडी के लिए तो नॉर्मली टेक 6 to 7 months एवरेज। ये हमने एज्यूम किया है। तो यहाँ पर प्री सैंक्शन के लिए हमने कोई टाइम फ्रेम रखा नहीं। हाँ, बट ऑब्वियसली फाइनल प्रपोजल आपका जब अप्रूवल होता है, जैसे मैंने कहा कि 1 FSI आईओडी लेकर आप अपना प्रपोजल बैंक में फाइनल अप्रूवल के लिए जब भेजेंगे, सो वो अप्रूव होने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ द सैंक्शन लेटर आपको मैक्स टू मैक्स 6 months के अंदर आपको पहला इंस्टॉलमेंट लोन का उठाना होगा। ये फाइनल अप्रूवल में आपको दूसरा एक आपका सवाल बहुत अच्छा है, हालांकि डेफिनेटली ये हमें भी सोचने पर थोड़ा सा मजबूर कर दिया है। ये आज के सेमिनार का एक मैंने सीखा हुआ शायद पार्ट है जो मुझे आगे चलकर इस पर अब थोड़ा सा वर्किंग करने की जरूरत है। कि जैसे आपने अच्छा सवाल उठाया कि अब जो प्री सैंक्शंस दिए हैं तो 2, 4, 6, 8 महीना उनको हुआ है। अगर पोस्ट कोविड हमें जब डिस्कशन में आया कि वो रिवर्क करना चाहिए, मुझे भी पर्सनली लगता है, तो क्या जो प्री सैंक्शन दिए है उनका क्या? सो डेफिनेटली जिनको भी प्री सैंक्शन दिए है सो हम उसके ऊपर भी गौर थोड़ा सा ध्यान देंगे उसके ऊपर। और ये पॉइंट मैं आज नोट डाउन कर लेता हूँ, आज के सेमिनार से मुझे मिला हुआ एक इनपुट है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे भी लगता है। गुड क्वेश्चन। Pranay, as sir said that, and you also said that we work very conservatively in our method and the way you do the feasibility and everything. So, as a conservative, have you not taken any implications? Forget COVID. Any implications or any method where any uncertainties can come in the time of a project? You might have already calculated that in the feasibility. Am I not right? Correct. So, what we do and how we process the projects to the bank also, when we do the feasibility report basically एक project report है जिसमें हम लोग cost calculations, FSI calculations and profit calculations करते हैं for the societies. When we do this, we calculate some certainties, as in some certain and some uncertain costs also. कि जहाँ पे ready reckoner possibility है, कुछ cost बढ़ सकते हैं, sales price reduce हो सकता है to some extent, we also consider. Miscellaneous cost, contingency cost also what we consider usually. But in the coming time, I'm talking about a short-term scenario for a year or two. The short-term time that will come for the industry.
Okay. वहाँ पे जो रेट डिक्रीज हो सकते हैं, और रेट डिक्रीज होने के बदले इनफैक्ट आई वुड से कि जो वेलोसिटी स्लो होगी सेल्स की, Okay. इसकी वजह से जो शायद सोसाइटीज को फास्ट सेल करने के लिए रेट रिड्यूस करना होगा, नॉट बिकॉज ऑफ द मार्केट बट मे बी टू फास्ट मूव आउट फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो सेल्स प्राइस रिड्यूस करने होंगे, उसका Okay. इम्पैक्ट क्या होगा, those impacts that need to be covered. ये हमने, I'm talking about a negative scenario. Definitely, this is a conservative scenario. There are positive things also which government is looking right now. Post Okay. COVID काफी taxations कम करने की बात कर रहे हैं. GST में कुछ चर्चा चल रही है इधर, और काफी सारे proposals चल रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, which could also reduce the cost of the project. Oh wow. तो जब cost reduce होगा, profit balance, sales price reduce होगा, entirely आपकी feasibility we have to rework, and this is an unforeseen time that we need to see, we need to rework, we need to get into further details, और पूरा feasibility redo करना ही होगा. And sorry, Dalvi sir, एक और point हम लोग just, sorry, go ahead. sorry, just one more point. Go ahead. पहले भी हम लोग एनालिसिस पे feasibility report बनाते थे, आज भी वही सिस्टम में ब्रेक इवन एनालिसिस पे feasibility बनानी होगी, जिससे बैंक Okay. भी ईज हो प्रोसेस फॉरवर्ड करने के लिए, प्रोजेक्ट लोन सैंक्शन करने. Okay. आई एम श्योर प्रोजेक्ट बैंक पर्सपेक्टिव जो प्रोसेसेस हैं सर ज्यादा हाईलाइट कर पाएंगे, बट बैंक को भी ईज करना होगा इन टर्म्स ऑफ सैंक्शनिंग द लोन फॉर द प्रोजेक्ट. Okay. दलवी सर, आपने प्रणय जी को सुना होगा. ईज तो करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आज तक यहाँ तक पॉलिसी रिवीजन ईज करते करते ही पहुंचे हैं. Okay. अब पोस्ट कोविड और क्या ईज करना है. सो बीइंग अ पैनल और लीडिंग नोडल एजेंसी, Okay. हम लोग उनकी जो रिक्वेस्ट होगी, उनके सजेशंस होंगे, उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे. Wow, wow. बोर्ड भी सर, इसको आगे लेके जाते हैं. अभी इसको आगे, ये टॉपिक को सर, आपने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि भाई आप सिर्फ 115 से 117 करोड़ के प्रोजेक्ट फंड करते हैं. तो सर, आपको ये मालूम है बॉम्बे जैसे शहर में बहुत सारी बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, या बहुत सारे बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको रीडेवलपमेंट की बहुत इमीडिएट solution चाहिए. तो सर, how do you take self redevelopment in that for such big societies forward? जैसे कि शुरुआत में दरेकर साहब ने भी कहा कि हम लोग कई बैंक से, फिर हमारे सब मेंबर अर्बन बैंक हो, फिर स्टेट की महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, जो स्टेट की अपेक्स बैंक है, जिनके सब डिस्ट्रिक्ट बैंक उसके मेंबर्स हैं. अपेक्स बैंक के जरिए उनको 13 सितंबर की जीआर में उन्हें नोडल एजेंसी बना गया है, और एवरी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट बैंक के थ्रू ये सेल्फ की पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करेंगे. Okay. तो हमें ऑलरेडी हमारा करस्पॉन्डेंस चल रहा है, और दरेकर साहब ने भी अभी कहा कि 1-2 दिन में हम इसका रिव्यू लेके वो फॉलो अप कर रहे हैं. तो ऑलरेडी Okay. हमारे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से चल रही है डिस्कशंस, करस्पॉन्डेंस हो रहा है, जल्दी उसकी मीटिंग होगी. और एक बार महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कंसोर्टियम अगर ओपन हो गया, हाँ. तो उनका पर प्रोजेक्ट एक्सपोजर बहुत बड़ा ज्यादा है, ऐसे मैंने सुना है. सो लेट अस सी. तो ये तो बहुत गुड न्यूज है सर. अगर ये हो जाता है तो फिर जितने भी बड़ी बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लोग भी सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए सोच सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं. प्रणय, द सेम क्वेश्चन टू यू. Pranay, the same question to you, that what is the position of your company and how do you take large projects forward? Is it not a hindrance to do multiple projects together, and especially the larger ones, because you understand this industry, how it works? Yeah, as I told you, I think it's a time for change. अभी जो in fact जो time है, time people have to change. Where we were already prepared कि taking larger projects will have to be there. आज जो फ्लो था, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सोसाइटीज इंक्लाइन थी, वो भी काफी अच्छा फ्लो था. सोसाइटीज, बहुत सारी सोसाइटीज थी, बट आने वाले समय में ये फ्लो हम लोग काफी मल्टीपल टाइम सोच रहे हैं कि सोसाइटीज और मल्टीप्लाई होंगी. Okay. तो जहाँ चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, वेयर इवन एज एन इंडस्ट्री, एज अ कंपनी, इवन वी हैव टू चेंज, वेयर वी वर प्रिपेयर्ड टू चेंज. वी आर आल्सो मेकिंग आवर सिस्टम्स ऑनलाइन, ताकि हम लोग भी ऑनलाइन वर्क कर सकें. एंड सी द चेंज. आई एम वेरी थैंकफुल. आपने चेंज की बात हो रही है और यहाँ पे सिस्टम्स की बात हो रही है, तो मैं सॉरी जस्ट आउट ऑफ द वे बीएमसी की बात करना चाहूँ. ये समय में अगर बीएमसी वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, तो बीएमसी ऑनलाइन काम कर सकती है, तो सबसे बड़ी चीज है अगर हम लोग ऑनलाइन काम नहीं करें. दिस इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट डूइंग वर्क फ्रॉम होम, वर्क ऑनलाइन, एंड डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम. सिस्टम
और BMC की बात मैंने इसलिए बात की बिकॉज जस्ट टू टेल यू इवन एट दिस स्टेज वी आर working for a society called Malad Sati Darshan in Malad, which is a big society. Okay. BMC आने वाले एक हफ्ते में 2 हफ्ते में हमें IOD भी आ जाएगी. So in this lockdown period, entire Oh wow. period में BMC ने काफी proposal pass किया. Wow. Great news. That means the industry is already moving. Yeah, absolutely. These are already working and moving. That's a great feedback. दलवी सर, हमने देखा है पिछले एक महीने में RBI ने बहुत सारा CRR और रेपो रेट बहुत सारा कट किया हुआ है. तो सर अभी मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक जैसा आपने बताया पॉलिसी में 12.5% सिंपल इंटरेस्ट पे फंडिंग करती है. तो क्या हम लोग उम्मीद रख सकते हैं सर कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट घटेंगे? डेफिनेटली सिनारियो ऐसा है, RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कंटिन्यूस कट कर रही है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, बैंकों के पास फंड्स उपलब्ध कराने के लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली बैंक कम कर रहे हैं. मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक ने अभी तक तो बेसिकली जो 12.5% है ये भी सिंपल रेट से बैंक कैलकुलेट करती है. जो अगर दूसरी बैंक से कंपेयर करेंगे तो दूसरी बैंक इसे कंपाउंड रेट से कैलकुलेट, फिर NBFC हो तो ईयरली फ्लैट, हाफ ईयरली फ्लैट, इनके हर एक के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के तरीके बहुत अलग होते हैं. बट मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक सिंपल रेट से कैलकुलेट करते हैं. घर में बैठकर कॉलेज का लड़का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इतना सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं. बट अगेन हालात चेंज हुए हैं, सिनारियो चेंज हुआ है. सो डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका कॉग्निजेंस लेंगे. Okay. वो उनके पावर्स है. सो होपफुली अगर वो उसमें करे तो आगे चलकर हमें देखना पड़ेगा बोर्ड इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है. So that would be really great अगर थोड़ा इसका फायदा हम लोग सोसाइटीज को दे पाए, बिकॉज फाइनली जैसा आपने बोला ये सोशल इंजीनियरिंग है, सोशल कॉज है, तो उसका भी बहुत आगे जाके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा सर. क्योंकि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत सेंसिटिव है हर चीज में, स्पेसिफिकली सेल्फ से रिलेटेड है. डायरेक्टर साहब ने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी उन्होंने आज हमें टाइम दिया है. एब्सोल्युटली प्रायोरिटीज है सेल्फ के लिए. एब्सोल्युटली तो कुछ करेंगे उस पर. डेफिनेटली. दलवी सर ये सवाल आपके लिए आया है बिकॉज Aditya, you'll have to give us 5-7 minutes because we have few more questions from the societies and lot of people who have been asking. दरिका साहब ये भी सवाल आपके लिए है कि भाई बहुत आपने जैसे प्रणय जी ने भी बोला और आप तो ये जानते हैं ये इंडस्ट्री के बारे में, बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं which is led by developers. तो और अगर ये डेवलपर्स या सोसाइटी ये रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट अटके हुए हैं इनको अगर सेल्फ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या आप बिल्डरों को या सोसाइटी को फंड करेंगे सर? सबसे पहले ध्यान में रखिए कि ये बैंक ने सेल्फ रीडेवलपमेंट स्कीम जो शुरुआत से लॉन्च किया है ये अगेंस्ट डेवलपर्स लोगों ने जो परेशानियां की है, डेवलपर्स लोगों के जो प्रोजेक्ट स्टक हुए, इसके लिए बैंक ने सोसाइटी जो मेंबर्स सोसाइटी उनके डिमांड या उनके रिक्वेस्ट पर बैंक ने पॉलिसी लॉन्च की है. ओके. सो ऑब्वियसली यहाँ पर किसी भी डेवलपर को बैंक एंटरटेन नहीं करती है. यहाँ पर डेवलपर फंडिंग बैंक किसी को भी नहीं करती है. रही बात अब वो मेंबर सोसाइटी है, उस डेवलपर के पास अगर अटकी पड़ी है सो हमें उसे केस टू केस बेसिस के ऊपर हमें उसे देखना पड़ेगा. बट एज ऑफ टुडे हम उसे इतना एंटरटेन नहीं करते, ज्यादा वेटेज हम देने की उतना कोशिश नहीं करते. उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं. तो एज ऑफ टुडे बैंक के पास रेगुलर सेल्फ रिटर्न प्रोजेक्ट ही इतने सारे आ पड़े हैं. ओके. एज ऑफ टुडे हम लोगों ने उसे बिल्डर फंडिंग हमारी बैंक कभी नहीं करती, ना आगे भी करेगी. ओके. प्रणय, since you are the pioneer of the self redevelopment concept in Bombay and you are the only guys who are physically actually doing it in Bombay, and as I have come to know that you all are the first initial guys who have all your initial projects are almost at the completion stage. What is the experience been of this journey dealing with the society as well as the bank as well as the buyers? Can you elaborate on that? Definitely, it's been quite interesting journey for not only for us, I think for the entire team, bank, societies. ये हम लोग ने जब शुरू किया था तब सोसाइटीज वर नॉट रेडी फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट. आज भी सोसाइटीज काफी क्वेश्चन में है, बट हमने 2 सोसाइटीज जो कंप्लीट करने के वर्ज पे है ऑलमोस्ट, व्हिच आर इन बोरिवली वेस्ट आईसी कॉलोनी. दोस 2 सोसाइटीज आर ऑलमोस्ट टू बी कंप्लीटेड. लॉकडाउन नहीं हो तो शायद लोग पोजीशन दे रहे होते, ये स्टेज थी. बट सोसाइटीज
the positive part of the self-redevelopment where these societies took that courage to go forward with self-redevelopment, जिसकी वजह से काफी सारी societies को आज confidence मिला है वो societies को देख के. Okay. Society sales जो बहुत बड़ा question था times, even where we have been successful in selling the inventory at a higher price than the market. Oh wow. In self-redevelopment, we have sold the inventory at a higher price in that local market at a very initial stages of that project. Okay. So those were quite positive things. Even आज COVID time में rent regularly bank के through जा रहा है, bank के loan के through rent जा रहा है. Society members are still relaxed at home. Okay. They don't need to. These were the positives. There are a lot many positives for society self-redevelopment. और challenges की बात की जाए जो ये real estate industry हमेशा challenges से ही बनी है, challenges से ऊपर आई है. But I think self-redevelopment में challenges काफी थे. रवि सर भी agree करेंगे उसमें. आज हम लोग पिछले 2 साल से जब connect हुए project के लिए, तब से लेके आज तक काफी सारे processes हमने change किए bank level पे. मतलब in fact काफी सारे challenges आए जो new challenges थे. challenges को improvise करते करते आज काफी strong system setup हो चुका है almost बैंक का. कि आज से वो 2 प्रोजेक्ट के काफी सारी सोसाइटीज को भी वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़े, वो चैलेंजेस फेस नहीं करने. इस मौका पे आज से वो 2 सोसाइटीज नहीं मतलब बाकी जितनी सोसाइटीज हमारी काम चल रहे हैं उसमें भी हमें काफी अच्छी लर्निंग मिली है और हर एक प्रोजेक्ट के साथ काफी इंटरेस्टिंग लर्निंग मिलती है जिसकी वजह से हम लोग वो चीजें इम्प्रोवाइज करते हैं अपने लेवल पे, बैंक लेवल पे, एंड देन वी टेक द प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड. दलवी सर सेम सवाल. आप सेल्फ रिडेवलपमेंट के पॉलिसी के पायनियर है. आपकी एक ही बैंक है जो सब प्रोजेक्ट्स बॉम्बे में फंड करती है. आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए वर्किंग विद द सोसाइटीज, वर्किंग विद प्रोफेशनल्स लाइक वी डेवलपमेंट, वर्किंग विद अदर स्टेक होल्डर्स स्पेशली इन द इंडस्ट्री. डेफिनेटली आप अगर ये सवाल मुझे नहीं पूछे तो मैं आपको इंटरप्ट करके मैं इसका आगे थोड़ा एलैबोरेट करने की कोशिश करने वाला था. तो अच्छा हो कि आपने सवाल पूछा. अब जैसे ये 2 प्रोजेक्ट बैंक के चल रहे हैं अभी, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हम लोगों ने बैंक को लोन सैंक्शन करने के दलवी सर म्यूट पे. हाँ, तो जो 2 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं बेसिकली जो फरवरी 2019 में हमने डिसबर्समेंट शुरू की. ओके. और यहाँ पर कई सारे बग्स बैंक के एंड की तरफ भी थे डिसबर्समेंट के प्रोसेस में, क्योंकि पॉलिसी फ्रेम करना और इम्प्लीमेंट होना 2 अलग गैप होता है इसमें. इसके पहले भी हमने 2 प्रोजेक्ट किए थे. उस वक्त का सिनारियो अलग था, उस वक्त की सिस्टम अलग थी. अब ये लेटेस्ट 2 प्रोजेक्ट है जयाकुंज और सुमा सैम के डेवलपमेंट कर रही है. तो इस प्रोसेस में भी हम लोगों को कई सारे दिक्कतें आई. फिर हमारे सिस्टम में हमें कुछ चेंजेस के सुझाव किए गए. पेमेंट्स, लोन डिसबर्समेंट में थोड़ा सा डिले होने लगा था. कई सारे कारण थे. वहां पर टैक्स की पेमेंट करना थोड़ी सी दिक्कत होने लगी सोसाइटी को और वी डेवलपमेंट को. तो हमने कई बार जितनी भी डिफिकल्टीज जिस वक्त आई है ना, तो दोनों ने साथ में बैठकर इसके ऊपर सॉल्यूशंस निकाला है. फ्रिक्वेंटली हमारे मीटिंग्स हुई है. हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फिर हमारे एमपैनल दूसरे नोडल एजेंसी जिनको हमने बैंक की तरफ से ये प्रोजेक्ट मॉनिटर करने के लिए प्रपोजल उनके पास दिया था, आर्क डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ हमारी कई सारी मीटिंग्स हुए और एक अच्छा डिस्कशन होके एवरी प्रॉब्लम हम लोगों ने बैठकर सॉर्ट आउट करके हम लोग आगे चले. और आज ये प्रोजेक्ट जैसे प्रणय जी ने राइटली कहा कि जो टारगेट था उनका 18-19 मंथ्स का, उसके पहले प्रोजेक्ट रन कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली अब ये सिचुएशन आने की वजह से जैसे कि इनका पोजीशन था कि बैंक ये बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है इनका सेल होता है नहीं होता है. और सेल के ऊपर बैंक की इन्हें एनओसी लेनी पड़ती है कि ये क्या रेट से सेल कर रहे हैं, ब्रेक इवन के नीचे तो सेल नहीं कर रहे. और थोड़ी मिस्टेक बैंक की तरफ से भी हो गई कि ब्रेक इवन थोड़ा हायर साइड पे गलती से दिया गया था. और उनके लिए एक माइलस्टोन हो गया अभी डेवलपमेंट के लिए. और वो रेट से उनको 24,000 प्लस से रेट से उनके बिके गए. तो ये सारी दिक्कतें हैं. बट बैंक का भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने भी कई चीजें इसमें सीखी है. सो हैंड टू हैंड हम जब साथ में जाते हैं एजेंसी और बैंक,
तो इसका आउटकम डेफिनेटली अच्छा होना ही है। अब ये प्रोसेस इतनी स्ट्रीमलाइन हो गई है, आगे जो नए प्रपोजल्स आएंगे ना, यस, उनको फ्लोलेसली फंडिंग होगी, कहीं पर भी वाओ, इतना फ्लोलेसली हम लोगों ने फंडिंग का प्रोसेस दोनों ने बैठकर इसे बना। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद रीडेवलपमेंट टू एंड ऑफिस बेयरर्स ऑफ Jayakunj and Sumasam also. Oh wow, great. Wow. Pranay, I want to ask you a very important question because I think so there's one challenge which always, especially the high-end residential societies, I think so you might have come across face, is the acceptance of the concept of self-redevelopment. You know, being in the redevelopment industry for so many years, trust is a very major factor. Absolutely. Decision-making process is a very, you know, people are not, they don't trust their own decisions. They have trust on others and faith on others, but Absolutely. they don't trust, they don't have faith. They lack confidence or faith. I don't know what to say, but what is your view on that? How do you convert a high-end residential society or any, you know, premium residential areas to help them to get into self-redevelopment? Absolutely. देखो, इसमें बहुत चीजें सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि मैं शुरुआत से सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ। कई सारे चैलेंजेस आए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुए, ये 2010 से सिलसिला चल रहा है 2020 तक। ओके। कई सारे चैलेंजेस, लेकिन हर चैलेंजेस हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर इसके देखा। सो हमारा देखने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एवरी वर्स्ट सिचुएशन एक कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आती है। अगर वर्स्ट से घबरा कर हमने सरेंडर कर दिया तो हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके ओके। सिमिलरली ये सिचुएशन भी ऐसी है, अलग तरीके की। हर सिचुएशन अलग होती है, तो हम लोग और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अगर कॉन्फिडेंट में आगे इसको फेस करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि क्योंकि हम लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, क्योंकि हम ये सेल्फ कर रहे हैं, सेल्फ का इससे मतलब ही to bear responsibility on our own shoulders. Okay. आप आपके एक्सपर्ट्स को या पीएमसी को जो अपॉइंट करेंगे, कई सारे पीएमसीज हैं, बट उनको चुनने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, हमारे पोटेंशियल स्पॉट के क्या है, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। ओके। उनकी काबिलियत क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से ये करने वाले, ये सभी चीजें अगर वो देखकर अपना पीएमसी अपॉइंट करते हैं ना, ठीक है, तो उससे बेहतर सेल्फ से और दूसरा कोई रास्ता। नंबर 1 सर, थोड़ा हम लोग इसको संक्षेप में रखते हैं बिकॉज टाइम थोड़ा कम है। ओके। तो मैं इसके लिए यही सवाल प्रणय जी को, ये जरा प्रणय जी को पूछ लेता हूँ, यही सेम सवाल, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके Pranay, what is your feedback on the question which I asked regarding how do you convince and convert premium localities and premium societies to they get into the movement of self-redevelopment? I don't think so. मैं just सोच रहा था, सर बता रहे थे, मैं भी कुछ रिकलेक्ट कर रहा था। आज की कुछ कॉन्वर्सेशन हुई है मेरी 2 सोसाइटीज के साथ। हाँ। तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक वेबिनार रखना चाहिए, जो सिर्फ सोसाइटीज हैं उनका ही वेबिनार रखना चाहिए, सिर्फ सोसाइटी जहाँ पे मैं आज एग्जांपल दूंगा। अभिलाषा कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर, तीनों से बात हुई मॉर्निंग में। तो तीनों इतने कॉन्फिडेंट, उन्होंने इतने चैलेंजेस देख लिए हैं अभी सेल्फ डेवलपमेंट पिछले हम लोगों ने 1-1.25 साल में, कि अभी उनके लिए कोविड बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ओके। अभी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन कंप्लीट हो, ज्यादा क्या इम्पैक्ट होगा, सेल्स में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, हम लोग उसको मैनेज करके आगे बढ़ेंगे। अभी उल्टा वो सोसाइटीज इस तरह से बोल रही हैं। वाओ। मलाड सती दर्शन सर हमारे ऑलरेडी फ्लैट बायर्स रेडी हैं, सेल इम्पैक्ट होगा, अगेन वी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज बट वी वांट टू टेक द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। तो सोसाइटीज इतनी पॉजिटिव हो चुकी हैं इन दिस, इवन इन दिस सिनेरियो वेयर कंटेंट आज 25 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं हम लोग एट अ टाइम, और सारी सोसाइटीज पूरे मोमेंटम में है आज भी। इवन एट दिस स्टेज दे आर कंप्लीट टू टेक देयर प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड। We are definitely sure that societies will be more confident in the coming months. Okay. So Aditya, I think so I have finished my questions. If you have any questions to ask the panelists. Yes. There are a lot of members asking a lot of questions for Mr. Dalvi and Mr. Pranay, both of you all. One very commonly asked question is that we are ready to do self-redevelopment, but we members do not have the time and the expertise to do it. So do we need to give our entire time to do self-redevelopment? How does that work?
So, can I answer? Dalvi sir, can I answer this? हाँ बोलिए ना. So basically इसमें मैं just brief में रखूंगा इसका आंसर. Where time and expertise नहीं है, that is where there are development managers. That is where there is redevelopment. So आप development manager के साथ work कर सकते हैं, PMCs के साथ appoint करके, professionals को hire करके आप work कर सकते हैं. So that is just a brief answer to take this forward. I think आप इसमें mail लिख के we'll take the conversation forward offline. क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे. इससे और सिंपल कुछ नहीं होगा. Okay. Another question is that the funding that the bank is giving, बैंक जो फंडिंग दे रही है 95% का, ये IOD के बाद दे रही है. तो IOD के पहले का जो फंडिंग है वो अगर सोसाइटी खुद से नहीं मैनेज कर पाए या कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो किस तरीके से ये होगा? बेसिकली बैंक अभी 5% का ही फासला रहा है. तो जैसे मैंने कहा कि आइदर वो कंट्रीब्यूट करे या मेंबर से डिपॉजिट ले या अपने एक्स्ट्रा एरिया जो सेलेबल कंपाउंड डिस्काउंट रेट से सेल करके पैसे जनरेट करे. 5% रेज करना ये माइंडसेट होना जरूरी रेदर देन 5% रेज करना. अगर हमारे प्रोजेक्ट सेफ और सिक्योर्ड चाहते हैं और लोन की लायबिलिटी कम करना चाहते थे, कई सारे रास्ते जो हमने अभी डिस्कस किए, उसमें से एक हम लोग ऑप्शन चूज करके जा सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का प्रोजेक्ट है ये. बैंक 95% ही देगी. ठीक है. एक जन ने पूछा है कि BMC का करंट. No, Aditya, just I think so, Pranay, the question was answered in the bank's perspective. Yeah, as a professional agency, as a development manager, how would you take this forward? That question, how would you answer that? The initial 5%, as Dalvi sir has also rightly said, I think 5%. Firstly, तो society को decision लेना है, 5% का solution automatically आ जाएगा. But however, there are multiple ways to accumulate this 5% initial investment. सबसे पहले कि society equal खुद contribute करे. If that is not possible, even we understand out of 100 societies, there could be 1 or 2 societies who would contribute this initial funding. There could be second option where internally sale हो सकते हैं, internally members जो हैं purchase कर सकते हैं कुछ extra area. जो ओवरऑल उनके ही प्रोजेक्ट से, जैसे नरेश जी ने भी बताया स्टार्टिंग में, सॉरी दलवी सर ने भी बताया कि कॉस्ट एट अ कॉस्ट, जो वेल्थ जनरेशन का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे थे, वेयर मेंबर्स कुड बाय एट अ कॉस्ट प्राइस और विद अ लेसर सेल प्राइस. उस तरह से मेंबर्स को बेनिफिट होगा कि लोअर डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज करने को मिले और एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट में फंड्स अवेलेबिलिटी भी होगा, सोसाइटीज को लोन कम लेना होगा. एंड even if this does not work, members भी नहीं आता, which could be a rare possibility. I think ऐसी possibility आनी नहीं है. But अगर ऐसा possibility होती है कि वहाँ कोई भी purchaser नहीं है, there are pool of investors even with development. So even we have pool of investors, private equity players who would pitch in and contribute this initial 5% funding. जो आप इसको हम लोग pre-sale बोलते हैं, pre-sale equity funding sort of funds आ सकते हैं. There are multiple ways to work that. This is a small issue that is pretty solved. Okay. Okay. Are there any more questions? Just last 2 questions we'll take. Yeah, we'll just take 2 last questions. So one question is that we are members of the society. We are approximately 70 members. Out of 70, more than 60 members are ready, but there are still few members who are not ready to go ahead with self-redevelopment. Now, in this case, can we go ahead? Can we appoint a professional agency to do something for us? Secondly, will the bank help us out in this way? So, I guess first you can answer, and then Dalvi sir, आप answer कर सकते हैं. Okay. I think for this, where Dalvi sir, thanks to Dalvi sir for this thing. Thanks इसलिए बोल रहा हूँ because ये policy जो sir बता रहे हैं कि policy काफी change होती रही. पहले policy थी 100% consent की. लास्ट जो पॉलिसी चेंज किया हमने उसमें 95% कंसेंट किया है, सॉरी 75% कंसेंट मैंडेटरी किया है, एंड द बैलेंस कंसेंट नीड्स टू बी गिवन बिफोर द डिसबर्समेंट. करेक्ट मी सर इफ आई एम करेक्ट एब्सोल्युटली. ये पॉलिसी जो चेंज हुई है इसमें 75% कंसेंट से सोसाइटीज आगे बढ़ सकती हैं, सैंक्शन ले, आईओडी लेके आ सकते हैं, सैंक्शन ले सकते हैं बैंक से. बट जिस दिन डिसबर्समेंट होगा, बिफोर द फर्स्ट डिसबर्समेंट, सोसाइटी हैज टू गेट 100% कंसेंट. Option number 1, or they have to go to the court to get a positive order in favor of the society. Okay. There's also one example in regards to this where we have Abhilasha Cooperative Society.
जहाँ पे ये सेम सिनेरियो वर्क हुआ है, जहाँ मीनवाइल अराउंड आई थिंक 79 मेंबर्स थे, 77 मेंबर्स थे, जिसमें से 71 मेंबर्स वर रेडी ऑन डे 1। आज के डेट पे वी हैव ऑलरेडी रिसीव द आईओडी, बैंक डिसबर्समेंट के लिए वेट कर, बैंक सैंक्शनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। 71 में से अभी ऑलरेडी और 4 मेंबर्स ने पॉजिटिव कंसेंट दे दिया है, and there are only 2 members who are left for giving consent. So ये सिनेरियो की वजह से भी रुके नहीं आप देखेंगे जर्नी में कंसेंट आते रहेंगे सोसाइटीज के। So only at the end where प्रोजेक्ट लास्ट में जाके स्टक होता है, that is only when the societies have to go to the court. Otherwise कोर्ट की भी नीड नहीं होती है most of the cases. Good, very good. जस्ट एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है इसके। आई एम श्योर जब कोर्ट की बात आती है सोसाइटी के एक माइंड में दूसरा फियर आता है, कोर्ट है मतलब कितना टाइम जाएगा, कितना कॉस्ट जाएगा। टू इवन टेल यू दिस, देयर आर ऑलरेडी सच प्रेसिडेंट्स इन रीडेवलपमेंट। देयर इज नो प्रेसिडेंट of such a scenario, such case study for self redevelopment. However, with this case of Abhilasha Cooperative Society, we are hoping that this could be the first case study in terms of 100% consent, 75% consent. ये सोसाइटी की रोल मॉडल होगी काफी सारे सोसाइटीज के लिए, जिसमें क्लियर हो जाएगा सोसाइटीज को कि ऐसे केसेस सेल्फ डेवलपमेंट में पॉसिबल है, एंड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऐसे केसेस फास्ट ट्रैक मोड में सोसाइटीज लेती हैं, कोर्ट लेते हैं, जो कि 3 से 4 महीने में कोर्ट सोसाइटी के मेजॉरिटी फेवर में ऑर्डर्स पास किए हुए हैं। और इसी चीज से सेल्फ डेवलपमेंट में अगर प्रोसेस राइट है, आई एम श्योर कि देयर विल बी पॉजिटिव ऑर्डर्स इवन इन फेवर ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जैक्टली यही चीज है ना प्रणय की, यही चीज बैंक ने कई सारी सोसाइटी अप्रोच हुई थी, क्योंकि 100% कंसेंट की वजह से आगे मूव नहीं कर सकती थी, और एग्जैक्टली 75% सैंक्शन कराने का हमारा मकसद ये था कि एटलीस्ट सोसाइटी प्रोसेस इनिशिएट कर सके, क्योंकि आईओडी के लिए आपको 6 मंथ्स लगने ही लगने हैं। तो बैंक ने भी डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम लोग 75% कंसेंट में इन्हें प्री अप्रूवल दे दे, ताकि सोसाइटी आगे मूव हो सके और एक उन्हें ब्रीदिंग पीरियड मिले। और जैसे प्रणय जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 से 3 महीने के अंदर सोसाइटी के फेवर्स में आ जाते हैं डिसीजन। सो जो 6 to 7 मंथ्स आईओडी के लिए लगना है, वो टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा। तो साइमल्टेनियसली सोसाइटी को आगे मूव करने के लिए हमने ये 75% कंसेंट की चेंजेस हमने 18 मार्च 2019 के पॉलिसी में किए थे। Aditya, any further questions? Yeah, one last question. That one society has asked, in case the society takes a loan, construction starts, everything happens, and for some reason if the society is not able to sell flats, या 2-3 फ्लैट अगर नहीं बिक पाते हैं सोसाइटी के, तो what happens in that scenario? 2-3 फ्लैट नहीं बिक जाते तो बाकी के फ्लैट बेचकर ऑलरेडी उनका लोन नील हो चुका होगा। 2-3 फ्लैट की वजह से कुछ रहा ही नहीं होगा, तो लोन नील हो गया तो कोई इशू ही नहीं है। Perfect. I guess you answered it. A simple solution to a very simple. Thank you so much for answering all the queries. और काफी सारे questions है जो सोसाइटी मेंबर्स ने पूछे हैं, हम सबको आंसर तो नहीं कर सकते। एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आप हमें मेल कर सकते हैं at info@vdevelopment.in with your society name and your mobile number, हम आपको 1-to-1 बेसिस पे रिप्लाई करेंगे। या तो आप फेसबुक पे भी हमें लिख सकते हैं, and we'll reply to all your queries. I think that's it for today. कल हमारा एक और सेमिनार है स्पेसिफिकली सेल्स के ऊपर, जो एक पूरा अलग टॉपिक है, जो आज भी काफी सारे क्वेरीज आए थे सेल्स को लेके। वी हैव अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर टुमारो, तो सेम टाइम एट 5 o'clock वी हैव अ डिफरेंट टीम ऑफ पैनलिस्ट्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन सेल्स, जो आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस्टर छाबरिया, Mr. Dalvi. No, and, we have for answering all the queries that society asked. Aditya, we have few more things. Sure. Your question is, I think so you should just repeat your email ID so that people can send you properly, because it was not very audible. Yeah, it's info@vdevelopment.in. info@vdevelopment.in. I will also request Dalvi sir to give your closing comments, because आपको सोसाइटी को अगर कोई मैसेज देना है या जो भी स्टेक होल्डर्स को कोई मैसेज देना है, प्लीज दीजिए। सभी को सबसे पहले
एक मैसेज दूंगा कि सब लोग घर रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। ये कोविड का जो इशू चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरा, सेल्फ के बारे में मैं सभी को यही कहूंगा कि सेल्फ इज द सेफेस्ट वे। सभी मेंबर्स साथ में आइए, अपने झगड़े बाजू में रखिए, एक साथ आइए, अपने खुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी को पहले समझिए। बाद में बचा हुआ प्रॉफिट वो आपका ही है, कोई शेयरर नहीं है। कंसल्टेंट की फीस है, बैंक का इंटरेस्ट पे करने के बाद बचा हुआ आपका ही है। सो बेस्ट एमिनिटीज, बेस्ट रेट, बेस्ट प्लान डेवलपर देता है, उससे कई सारे ज्यादा एरिया, ज्यादा मुनाफा, ये सभी चीजें सेल्फ रीडेवलपमेंट में अवेलेबल है। सो आप सेल्फ ही कीजिए। सेल्फ के लिए जो कोई हेल्प लगती है, बैंक तो है, हमारे एक्सपर्ट्स है, सभी आपको गाइड करेंगे। सो मेरी सलाह रहेगी कि सब एक साथ आइए और अपने सेल्फ के लिए आप आगे बढ़िए इन सेफेस्ट एंड सिक्योर्ड वे। सो थैंक यू वेरी मच। Pranay, your concluding remarks, then I will conclude. Yes. So firstly, before concluding, I would like to actually thank Shri Praveen Narikar ji. आज जो सर के आने से आज जो कॉन्फिडेंस मिला है सोसाइटीज को, which सोसाइटीज पिछले एक महीने से हमें मेल कर रहे थे, जो बात कर रही थी सोसाइटीज की, अब क्या होगा, बैंक फंडिंग देगी नहीं देगी, एंड आई थिंक सर ने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस दिया है। आई एम श्योर ये सेल्फ डेवलपमेंट का मोमेंटम यहाँ से और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एंड काफी बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला है, जो फॉलो अप किया है। दलवी सर भी बोल रहे, आज काफी फॉलो अप करने के बाद काफी मुश्किल से उनका टाइम मिला है, और उस कम समय में उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस दिलाया सोसाइटी को, तो बहुत थैंक यू उनको। एंड सेकेंडली इवन दलवी सर के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, बिकॉज आज सर ने भी जो इंसाइट्स दी है, सर जो आज मोमेंटम में काम कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव, आई थिंक एज एन इंडिविजुअल पर्सन ऑल्सो, व्हाट आई नो हिम, दैट ही हैज बीन वर्किंग डे इन डे आउट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। और आज वेबिनार पे आने का रीजन भी इनका भी यही था कि एक सोसाइटी को कॉन्फिडेंस मिले, बूस्ट मिले, एंड द शो मस्ट गो ऑन। सो ये दरिकर सर और दलवी सर के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा थैंक यू। एंड आई थिंक नरेश जी, आपके लिए भी आई वुड से, आई थिंक क्वाइट वेरी वेल मॉडरेटेड द एंटायर सेमिनार वेबिनार, वेयर आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने काफी कवर कर दिए हैं जो FAQ सोसाइटीज के हैं। don't think societies को और कुछ pending है. Still, if they have questions which is never ending for the societies as well, so they can always write to us, they can always keep in touch with us. And in this coming time, what shortly just I'll close it, where we have been doing this. Sorry, just one last thing, Nariji, I think societies, as Dalvi sir ne bola, society members ko sab saath mein aana hoga. They all have to come together. Okay. When the entire nation can come together to fight COVID, I think self development तो बहुत छोटा सा मुद्दा है. Because हम सब साथ में आ सकते हैं and we can bring the change. So definitely. Great. After listening to both Dalvi sir and Pranay ji, both of you, I will just conclude what I have understood of the entire discussion here is that post lockdown, it's going to be more tougher for the real estate industry due to the finance and the liquidity crisis. Self-redevelopment approach assures both the finance part, it mitigates the finance part as well as the sales part. And since you all already said you all have a webinar on sales, so you all are going to cover that topic tomorrow. So it's great, but I think so it mitigates the biggest two challenges what I have seen in my 2 decades of redevelopment experience, that finance or sales are the two most and the most important aspects which I think so developers are not covering it fully before even starting a project, which I think so is the way things are going to evolve now. Secondly, as I heard Dalvi sir, that MDCC Bank has enough liquidity. So even post-COVID, they can fund all multiple projects, how much ever projects, and because of the consortium finance, even they will fund big projects in the near future. In fact, what discussion we have that societies will have to revisit their feasibilities a bit in order to adjust the emergency situation of post-COVID crisis. Societies, most important motive is to complete the project on time. Hence, society has the power, and society should not bother and not be greedy, as you all put it, that
Sales is not the issue. Sales can always happen because Bombay में हर चीज बिकती है, जो दिखता है वो बिकता है, सिर्फ उसकी दाम सही होनी चाहिए, कीमत सही होनी चाहिए. And how घर ऐसी चीज है, हर इंसान को एक घर चाहिए. घर एक मंदिर है, तो और वो मंदिर अगर सही कीमत पे मिलता है और उसकी पूजा की जाती है, you can get it, and their sales always happen. The financial strategy, as I said earlier also, has to be worked out before the project starts. 100% financial closure of the project is a must, and I think so self-redevelopment achieves that goal. Most important is societies have to, and even the professionals which are involved, have to find alternatives for reducing borrowing. Even though the bank is giving you funds, please see to that you borrow less of money, do more sales among yourselves, because it's a social movement where you all can actually buy at cost. And most important, I think so, the society should, बैंक तो है ही है आपको आज फंड करने के लिए, एक ही बैंक है पूरे मुंबई में, but society should even appoint good experts, professional and experienced experts who already have a legacy to handle such projects. And friends, I would like to end this with two conclusions which I have been following throughout my life. In fact, they have been the ethos of my life throughout. They say a house is built by hands, but a home is built by hearts. Come join the movement of self-redevelopment to build your homes with your own hands and hearts. And secondly, as President John F. Kennedy said, in the Chinese language, the word crisis is composed by two characters, one representing danger and the other opportunity. Keep in your mind opportunity. Danger is negative. Opportunity is what everybody looks at. So very few people, especially in redevelopment, get a second chance to achieve success. So grab it with both the hands. Thank you very much, Dalvi ji, for having me here as a moderator today, and to you, Pranay ji, and to all the people who have joined us in this webinar. Thank you very much. Very kind of you. We hereby end.